हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडमिशंस। तो आज के सेशन में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज़ इंडियन एविडेंस एक्ट के एडमिशंस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन दिस सेशन विल बी गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ एडमिशन, द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, एंड we'll be going to discuss that who are the parties who are eligible to make admission. तो आज के सेशन में हम एडमिशन की रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है विल बी गोइंग टू डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन के मीनिंग के साथ में, दैट इज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दैट इज एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, oral or documentary or contained in any electronic form which suggests any inference as to fact in issue or relevant fact which is made by any of the parties under circumstances. तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन हमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एडमिशन एक्चुअली एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऑरल या डॉक्यूमेंट्री या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी हुई स्टेटमेंट, जिससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकें किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में जो उन पर्सनस के द्वारा दी जा रही है, जो इन सेक्शंस में मेंशन्ड है, दैट हु आर द पार्टीज हु कैन गिव एडमिशंस. So in other words, we can say admission is any oral, written or electronic statement regarding any fact in issue or relevant fact which is made by any of the persons जो नीचे दिए हुए sections में mentioned है, or circumstances that are being enshrined in the sections given below. तो हमें अब एडमिशन के मीनिंग के बाद एडमिशन के रिगार्ड में जो सेक्शंस और प्रोवाइडेड हैं इस एक्ट में, उसमें हमें कुछ सिचुएशंस और कुछ पर्सन्स को बताया गया है, जिसमें ये चीज़ इलेबोरेटेड है कि हु कैन गिव एडमिशन एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दे कैन गिव एडमिशन. सो कीपिंग इन माइंड दो सर्कमस्टांसेस एंड पर्सन्स, अगर कोई भी पर्सन किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की ऑरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, दैट विल बी डीम टू बी एज एडमिशन एज पर द लॉ. Now moving to section number 16, जिसमें we'll be going to discuss who can give admission. तो sections 16, 17 and 18, these three sections will be dealing with the parties who can give admission. तो सबसे पहले बात करते हैं section number 16 की. तो section number 16 कह रहा है कि party to proceeding या agent to the party are authorized to give the admission. तो कोई ऐसा person who is party to the suit is eligible to give the admission, and any agent on behalf of the principal who has been authorized by that very principal is eligible to give admission. So as per this section number 16 subsection 1, the party and his agent is authorized to give the admissions. Now coming to subsection 2, now according to this section, any party who is being sued or who is suing but in a representative character means कि अगर कोई भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में कोई केस को स्यू कर रही है, या कोई पर्सन हु हैज़ बीन स्यूड एज अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, इवन दे आर एलिजिबल टू गिव एडमिशंस. नाउ इन क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2, द पार्टी हु इज हैविंग अ प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ प्रोसीडिंग आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव द एडमिशंस. नाउ ये प्रोसीडिंग्स की बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी who is not a party to proceeding, लेकिन whosoever is a party to proceeding and उस proceeding में जो subject matter है, उस subject matter में that third party is having interest, then that third party will also be eligible. For example, A and B, they both are party to the suit. इन दोनों के बीच में proceeding चल रही है और proceedings are regarding to the you can say property dispute. It's a property dispute. So the property is in dispute between A and B, but that very property is having a joint interest along with C. C is not a party to the suit, but C has some extent of the right in that property, being a joint owner. So in this case, if any of the statement is being given by C, even that will be relevant in the particular case. Being a third party and not a party to the suit also, the C will be eligible to give the admissions. Then is clause B. Now clause B is saying कि persons from whom the parties to the suit have derived interest. Now इसी example को हम आगे discuss करते हैं. अगर A and B both are parties to the suit and
The subject matter is again property, and the question of the dispute is whether that property belongs to A or not. And in this very case, the fact is that A have purchased this property from C. So since the property that is in dispute is being purchased by party to the suit from the third party, and the question that is being involved is regarding to that subject matter, from whom the interest in that subject matter was derived from that very third party. So that third party, that is C, will be eligible to give the admission, and that statement will be relevant too. But the most important thing that is to be kept in mind is that interest of that person who is making that statement should be during continuance of that time. फॉर एग्जाम्पल कि यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर 1 मार्च का है और ये जो क्वेश्चन इन डिस्प्यूट है दैट इज़ बीन हेल्ड ऑन 31 जनवरी, तो उस केस में क्योंकि वो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट 31 जनवरी को उसी के कंटिन्यूंस में था, तो उस कंटिन्यूंस इंटरेस्ट में जब उस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट उसमें कंटिन्यू था, उस टाइम के रिलेटेड की दी हुई स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी ड्यू टू कंटिन्यूस ऑफ हिज इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट दिस सेक्शन मीन्स. आई होप आपको सेक्शन 16 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, डू लेट मी नो बिलो कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स एज वेल. देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 17. नाउ सेक्शन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इज इन क्वेश्चन. तो अगर किसी सिचुएशन में किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी या उसकी पोजीशन इन क्वेश्चन है, तो जिस भी पर्सन की लाइबिलिटी और पोजीशन इज इन क्वेश्चन, उसके द्वारा दी हुई कोई भी स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट एज एडमिशन. तो अगर किसी केस में वो जो क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट है that is pertaining to the liability of that party and position of that party, then if the person whose liability and position is in question, that person's statement will be relevant as admission. For example, A और B में एक dispute चल रहा है और उस dispute का मेन क्वेश्चन ये बनता है कि जो थर्ड पार्टी C है उसकी लाइबिलिटी इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह बन सकती है या नहीं. तो उस थर्ड पार्टी के ऊपर की जो लाइबिलिटी है या उसकी अगर पोजीशन इन क्वेश्चन है, तो एनी स्टेटमेंट गिवन बाय दैट थर्ड पार्टी पर्टेनिंग टू हिज लाइबिलिटी और पोजीशन विल बी रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन. देन इज सेक्शन नंबर 18. सेक्शन नंबर 18 इज नथिंग, बस इतनी सी बात बोल रहा है, रेफर्ड पर्सन. तो अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रेफ़र करता है कि जाओ इस चीज़ का जवाब आप थर्ड पार्टी से पूछ लो, रेफर्ड पर्सन के द्वारा दी हुई स्टेटमेंट विल बी यूज्ड एज एडमिशन अगेंस्ट दैट पार्टी हु रेफर्ड दैट सेकेंड पार्टी टू हिम. नाउ स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू whom द पार्टी टू द सूट हैज़ एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशन. अब ए और बी में एक डिस्प्यूट है. ए ने बी से कहा कि जाओ सी से जाके ये चीज़ कंफर्म कर लो, ये पूछ लो. तो बी ए के कहने पे वो चीज़ सी से पूछने चला गया और सी ने जो स्टेटमेंट दे दी, तो वो स्टेटमेंट विल बी ऑपरेट एज एडमिशंस. सो दिस इज व्हाट दिस सेक्शन मीन्स. नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 19. नाउ सेक्शन नंबर 19 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रूविंग दैट एडमिशंस अगेंस्ट दैट पर्सन. तो ये बोल रहा है कि जो एडमिशंस है वो प्रूव कौन करेगा? वो प्रूव करेगी हमेशा ऑपोजिट पार्टी, और वो प्रूव हमेशा अगेंस्ट यूज़ होगी. मतलब द एडमिशंस आर ऑलवेज सेल्फ हार्मिंग, दीज कैन नॉट बी सेल्फ सर्विंग. एडमिशंस हमेशा अगेंस्ट में ही यूज़ होती हैं, फेवर में यूज़ नहीं हो सकती हैं. सो एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी और अ पर्सन हु मेक्स देम, और रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, मतलब जिस पार्टी के हम ऊपर डिस्कशन करके आए हैं, तो उन पार्टीज़ के लिए ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हो सकती है एंड इट कुड बी प्रूव्ड अगेंस्ट देम. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शंस इसमें क्या है? सबसे पहले तो इसमें है डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट, कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, अब अभी अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये सारी एडमिशंस प्रूव करनी पड़ेंगी अगेंस्ट में. मतलब ऑपोजिट पार्टी एक पर्सन का दिया हुआ एडमिशन प्रूव करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट. लेकिन दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें ऑपोजिट पार्टी को प्रूव करने की कोई नेसेसिटी नहीं है. तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको एडमिशंस प्रूव नहीं करनी है? मतलब एक ऑपोजिट पार्टी को कहाँ पे
एडमिशन्स प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. द वेरी फर्स्ट इज अंडर सेक्शन 26. अंडर सेक्शन 26 वी हैव डिस्कस अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन. तो अगर कोई पर्सन मरते मरते कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो उसके अगेंस्ट है, तो वो आपको प्रूव नहीं करनी, क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन ऑलरेडी रेलिवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 26. देन इज स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी स्टेट. तो अगर कोई पर्सन कोई स्टेट ऑफ माइंड या कोई बॉडीली फीलिंग को प्रूव कर रहा है एज एडमिशन एज अगेंस्ट, तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है वो खुद ही उसको प्रूव करेगा. तो जैसे कि हमने देखा कि एडमिशन्स आर ऑलवेज सेल्फ हार्मिंग, तो ये एक्सेप्शंस जो हैं ये हमेशा वो ही पर्सन प्रूव करेगा जो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है. इट मीन्स कि ये तो अपने फेवर में ही प्रूव करेगा ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर रेस्ट स्टे. हमने जो पढ़ के आए हैं हम वो वाला कॉन्सेप्ट, रेस्ट स्टे वाला कॉन्सेप्ट इसमें है, और साथ ही साथ अदर स्टेटमेंट्स. अब अदर स्टेटमेंट्स में इसमें हम प्ली ऑफ एलिबी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो प्ली ऑफ एलिबी ऑलरेडी वही पर्सन प्रूव करेगा, तो अगेंस्ट पार्टी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. सेम विद रेस्ट स्टे, ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है या नहीं, तो दिस विल बी ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पार्टी इटसेल्फ, नॉट नो ऑपोजिट पार्टी हैज़ टू प्रूव दीज थिंग्स. सो दीज आर द एक्सेप्शंस where the rule of self-harming and rule of proving the admissions against will not operate. I hope आपको ये clear हो गया होगा. And these are certain examples. You can go through these examples too. Then is section number 20. Section number 20 is saying कि अगर कोई भी जो एडमिशन है वो किसी कंटेंट के ऊपर है या कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग सर्व्ड एज एडमिशंस, अगर कोई डॉक्यूमेंट ही एज एडमिशन ऑपरेट कर रहा है तो उसका ओरल एडमिशन आप नहीं दे सकते. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. दैट इज ओरल एडमिशन विल बी एडमिसिबल pertaining to contents of documents, but only in two situations. The very first is where there is a genuine cause that you are eligible to give a secondary evidence. मतलब जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि हाँ आपका रीज़न जेन्युइन है और आप एलिजिबल हो क्या किस चीज़ के लिए, सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए. इन सर्टेन सिचुएशंस, तो अगर वो सिचुएशंस इसमें प्रिवेल करेंगी एंड कोर्ट फाइंड्स यू एलिजिबल टू गिव a secondary evidence, then you can give oral admissions pertaining to contents of documents, otherwise no. This was the very first condition. और second condition इसमें ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो एज एडमिशन पेश किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है उसकी जेन्युइननेस ही अगर इन क्वेश्चन है, इट मीन्स कि इफ़ द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज इन क्वेश्चन, देन ऑल्सो यू कैन गिव oral admission as to the contents of document. सो फ्रेंड्स जर्नली आप ओरल एडमिशंस नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के लिए, दे आर नॉट रेलिवेंट, बट इन टू सिचुएशंस इट कुड बी रेलिवेंट. द वेरी फर्स्ट इज व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंडरी एविडेंस एंड द सेकेंड वन इज व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन. सो नाउ कमिंग टू द सेक्शन नंबर 21, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एडमिशंस. नाउ सेक्शन नंबर 21 सेज इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ, मतलब जर्नली तो इट इज़ एडमिसिबल, एडमिशन सिविल केसेस में जर्नली एडमिसिबल है, लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो एडमिसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट रेलिवेंट. द वेरी फर्स्ट इज व्हेन देयर इज एक्सप्रेस कंडीशन और व्हेन कोर्ट फाइंड्स कि पार्टी हैव ऑलरेडी एग्रीड नॉट टू प्रेजेंट एनी एडमिशन इन द पर्टिकुलर सिविल केस. मतलब कि अगर आपने कोई एक्सप्रेसली कंडीशन लगा रखी है कि हम इसमें एडमिशन नहीं देंगे, इस सिविल केस में हम किसी भी तरह के एडमिशन प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो उसमें अब एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगी. दूसरा, अगर कोर्ट को सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये कंक्लूजन मिल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में पार्टी ऑलरेडी एग्रीड है, मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाला केस है कि भाई हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो अगर पार्टीज़ ने ऐसा एक्सप्रेसली मेंशन किया है तब भी, और अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज़ में हैव ऑलरेडी एग्रीड कि नो एडमिशंस कुड बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर सिविल केस, तो भी उस सिविल केस में एडमिशंस आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक जर्नल ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले तो एडमिशंस जो हैं वो सेल्फ हार्मिंग होते हैं. हाँ, वन मोर थिंग, एविडेंशियरी वैल्यू जो हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज इट इज़ अ सब्सटेंटिव एविडेंस. एविडेंस जो है ये सब्सटेंटिव है एडमिशंस, लेकिन स्टिल इट रिक्वायर्स अ कोरोबोरेशन, मतलब कोई भी डिसीजन या जजमेंट सोली इसके ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता.
So admissions are quite good evidence, though substantive evidence, but still it cannot be relied solely by the court, and it should always be self-harming. So this was all about admissions. I hope ये आपको clear हो गया होगा. And end में एक चीज़ that is to be kept in mind is admissions will always operate as estoppel. मतलब एडमिशन जो है हमेशा स्टॉप ज़रूर करेगी आपको अपनी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट होने के समय. तो एडमिशंस ऑपरेट एज स्टॉपल्स, दो दीज आर नॉट कंक्लूसिव बट दीज विल ऑपरेट एज स्टॉपल. That's all about the admissions. I hope this session is clear to you. In case you have any sort of doubt, any problem, do let me know in below comment box ताकि आपके doubts भी clear हो सके in regard of these topics and sessions whatsoever we used to conduct in the sessions. That doubt should be clarified. So that's all about today's session. I hope you like the video. So if you like the video, then do not forget to hit the like, share and subscribe button. Thank you and stay tuned with Law Diction.